बहुत शुरू से ही हमारा फोकस था कि हम ब्राउन ब्रेड सैंडविच में रहें, और वी सर्व लाइक like Subway multi-grain breads and some other breads, but in north there are less opportunity in some other variants of the breads. So we started with only brown breads, and we are serving brown breads, sandwiches, burger, all are in brown breads. So that's our USP. And second, like, our breads are very different. So we have very good recipe of the breads which we have given to our vendor, who are circulating for the center, for complete stores, for all the stores, which is centralized. So these breads are very given recipes, and that's applied to everyone at the doorstep. Next slide, Ashokji. Can we see the photographs of first slide? Yeah. So these are people who are behind us, our team. The next slide. Yeah, up. Yes, yes, upside. So I'll just show you the pictures of our store, how the look and feel of this store. The idea of these stores in dining mode to have a premium cafe. So our stores, which are set up from the start, it looks very premium. तो शुरू से ही वेरी स्मॉल साइज में ही हमने एक ऐसा लुक दिया था जो थोड़ा सा यूरोपियन टच हो, और उसका लुक एंड फील थोड़ा प्रीमियम हो, and that can be cater youth and as well as family also. So these are the first store which we have opened in Lucknow, and the second photograph is showing our first franchisee store, which is in upcountry in Orai. So these are the stores. As of now we are running 10 stores, 6 stores in Lucknow, and rest are in different cities like Allahabad, Kanpur, Orai, and Bahraich. So these are our franchisee stores. Our flagship store in Bahraich, which is 1,000 square feet of size, which is biggest store in our company. Yeah, next slide, which we describe about your. Yeah, so these are the achievements which we have go through. We received 2 certificates from last three years, which we received. We found like given a good opportunity to our franchisee partners as well as our customers. So that's the awards which we received. Yeah, next slide for the food. So these are our food. So mostly people are asking like what kind of food we are catering with. So we have all sandwiches, around 16, 17 kind of sandwiches, and the size of sandwiches, I can say one can't eat at one go. It's a big size, like jumbo bread sandwich, which we are grilling. Second is pizza, then burger, pasta, garlic breads. Most of the cafes probably having the same things, and then lava cake and cold coffees, hot beverages, cold beverages, and everything. How we boost up our brands? Whenever we try to open our store or we finalize the store, we also try to have a bigger opening. Say we can see the pictures. We tie up with many of the people who can influence that brand in the local city. Suppose in Lucknow we choose some political parties, MLA or someone who can influence that brand, or some singer or someone who can promote our brand. So we choose someone to cut the ribbon for the first day and have some booster for the brands. So this is like these are the pictures. We are also trying to have full place media coverage when we open any of the city or any of the store which we are doing a grand opening. So we'll try to have a media coverage also in print media also, as well as the electronic media also. So these are the boost which we give to the franchisee partner when they open their first cafe. Yeah. Next slide. Ashokji, please scroll the slide. Yeah, so these are why we are choosing these, Mr. Franchisee and our outlets franchisee. So दो तीन क्वेश्चन रहते हैं जो probably you guys are having in your mind. First कि after corona हम ये मतलब food को क्यों choose करें? क्या फायदा है? इस समय तो लोग जा भी नहीं रहे हैं. So I just wanted to clear your myth. We have opened all the stores after corona, when lockdown get unlocked. So we started doing the business, and we found the business is actually grown as compared to February business. So if you see the growth,
if we are doing 5,000 rupees, 6,000 rupees sale in Feb or January, we are doing 1.5 times better than the last sale which we have done in Feb or March. So I can say the growth has already come because 3-4 months people were locked at home. So now people are trying to go outside. Also, second, many people are thinking like online model is growing well, or these Zomato, Swiggy partners are doing well. So this is not the same because nowadays हम लोग खुद क्या चाह रहे हैं कि हम जाके देखें what kind of food you guys are preparing, how these are being prepared, and what kind of hygiene maintained at your store. So people are more willing to see कि हम जहाँ से खाना ले रहे हैं या जहाँ पे बन रहा है उसका तरीका क्या है, वो कितना हाइजीन है. सो मेरे हिसाब से डाइन इन अब और ज्यादा पुश हो रहा है. दिस इज द रीजन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर and even the last quarter will have more and more query. So I can understand after this corona and COVID things, people are now being getting settled and willing to go around. So these business are growing. Rather I can say like many of the stores got shut down because of various reason. जैसे कि सबसे बड़ा रीजन होता है उनका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई है. जितने भी स्टोर्स जो बंद हुए हैं, आई हैव रिव्यूड many of them personally and I find they have very huge operational cost. First of all, their rental were high. Second, their operational cost is like it leads with their manpower cost. अगर आपका manpower बहुत ज़्यादा high है, 70,000 80,000 रुपये अगर हम manpower में दे रहे हैं तो आप बहुत दिन तक रन नहीं कर पाएंगे. तो इस जो भी स्टोर्स अभी शट डाउन हुए हैं मार्केट में, जो आपको दिख रहा है कि बहुत सारे स्टोर बंद हो गए, रन नहीं पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि उनका मैन पावर कॉस्ट बहुत हाई था, उनका रेंटल बहुत हाई था. बट इन आवर केस व्हाट वी आर ऑफरिंग हाई प्रॉफिटेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आवर बिजनेस इज वेरी वेरी ब्रेक इवन मॉडल पे रहता है. जैसे कि अगर आपका कोई भी स्टोर 3,000 3,500 रुपए का भी सेल पर डे कर लेता है तो वो कभी भी अपने पॉकेट से ब्लीड नहीं करेगा. ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो लोग पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं. यानी कि अगर कोई भी स्टोर 3,500 रुपए का सेल कर लेगा या 3,000 का सेल कर देगा, डिपेंड ऑन देयर रेंटल, मतलब अगर उनका रेंटल 25 से 30,000 के बीच में है और अगर इतना सेल वो निकाल लेते हैं तो वो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे. और लोग बंद किस स्थिति में करते हैं, जब वो अपनी जेब से 20-25,000 से ज्यादा देने लगते हैं, मतलब दे स्टार्ट ब्लीडिंग, देन दे फाइंडिंग आउट टू शट डाउन. बट इन द टाइम जब तक उन्हें लगता है कि नहीं अभी तो चल रहा है, कुछ देना लेना नहीं है, हम इसको ग्रो कर सकते हैं, तब वो कभी भी बंद नहीं करेगा. तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इन दिस मॉडल आवर ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी लो एंड वी आर गिविंग हाई प्रॉफिटेबिलिटी. लाइक आवर बिजनेस इज इन दैट मोड वेयर इफ वी entertain at least 25 to 30 customer will we earn around 40 to 50,000 rupees, and which is not a big deal for any of the stores, and all the stores are doing the same thing. Second, affordable investment. Our investment is very low. How we can say low? Because if you check on any of the portal, डाइनिंग मॉडल का कॉस्ट जो आता है वो 10-12-15 लाख रुपए से कम नहीं है. कोई भी डाइनिंग मॉडल है, आप डाइनिंग मॉडल का मतलब होता है जहाँ टेक अवे, जैसे काफी सारे स्टोर आजकल टेक अवे खुल रहे हैं या क्लाउड किचन में खुल रहे हैं. हम डाइनिंग मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक सेटिंग होती है और हम 20 से 25 मिनिमम सेटिंग्स ऑफर करते हैं और 40-50 तक सेटिंग रखते हैं एटलीस्ट 400 स्क्वायर फीट में. तो जो डाइनिंग मॉडल का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है विच इज हार्डली 6 to 8 लाख रुपीज इंक्लूडिंग आवर ब्रांड फी, विच इज वेरी वेरी लो, एंड दिस इज मोर और लेस पोर्टेबल ऑल्सो. तो अपना अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है. और उसके बाद हमारा कंटिन्यूसली हैंड होल्डिंग क्या है कि यू ऑल नो वी आर स्टार्टअप, सो आई बिलीव एवरी स्टोर इज माई चाइल्ड and I am my core business is this. It's my bread and butter, so I am trying to handhold each and every store personally, or with my team is handholding each and every store. Like they are trying to make your P&L every month. आपका हर महीने का एक्सपेंस लेके वो प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बना के आपको भेजेंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं. इवन दे आर डूइंग इन अ राइट वे, जहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने पनीर ज्यादा कंज्यूम करा है, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके स्टोर में सॉसेज एज कंपेयर टू अदर स्टोर ज्यादा खर्च हो रही है. सो दीज काइंड ऑफ माइनर डिटेल वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, सो यू कैन हैव complete handhold on your operation and you will not bleed. So this is the reason why we are offering, why we are even sustaining even after the corona things. All stores are doing good. Yeah, Ashok ji, next slide. Return on investment, yes. So these are the calculation which I can roughly give you how we can have a business. तो बहुत सारे लोगों का एक
एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हम क्या अर्न करेंगे इसमें। तो मैंने एक सारे स्टोरों का एवरेज निकाल कर आई हैव जॉटेड डाउन इन अ सिंगल शीट कि हम कैसे कैसे बिजनेस रन कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। So this is on a basis of 300 to 500 square feet area which we are targeting. So suppose sale for the day is 7,000 rupees. So after COVID, it's slightly down, or many of the store even they are doing better. But then also I can have a benchmark of 7,000 rupees sale for the day. तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है वो हमारा 33% के आसपास आता है। सो 33% का मतलब हुआ कि अगर 33 रुपए का कोई चीज है वो 100 रुपए में बिकता है। इस तरीके की कॉस्टिंग डेवलप करी गई है। तो कुछ आर्टिकल होंगे जो 35 रुपए कॉस्ट करेंगे, कुछ आर्टिकल होंगे जो 30 रुपए कॉस्ट करेंगे, पर ऑन एन एवरेज 33 रुपीज का कॉस्टिंग बनता है। तो हमारा 2,10,000 रुपए का अगर सेल होता है तो उसमें कॉस्ट ऑफ फूड जो आएगा वो आपका 70,000 रुपए के आसपास आएगा। तो वो मोटा मोटा आपके सेल में से निकल गया। वो ब्रेड है, सॉसेज है, आपका सॉल्ट, नमक, पनीर, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग विच कॉस्ट अराउंड 70,000 रुपीज। तो ये आपके उसमें आएगा। जो मोटा मतलब जो हम कह सकते हैं द ग्रॉस मार्जिन विच कम फ्रॉम दिस कंप्लीट सेल्स विच इज 1,40,000 रुपीज। नाउ कम टू द एक्सपेंसेस। तो आपका एक्सपेंसेस क्या रहेगा? रेंट हमने 30,000 डाला है। अभी प्रॉपर्टी का रेट काफी नेगोशिएट हुआ है अपना। जैसे हम मिस्टर सैंडविच का बात करें तो हमारी 5 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनको रीनेगोशिएट करा गया है एंड दे आर एग्जैक्टली ऑन हाफ प्राइस आफ्टर द कोरोना। एंड फ्यू प्रॉपर्टीज हैव लैंडलॉर्ड कमिटमेंट कि नेक्स्ट 12 मंथ तक हमें 30% ड्रॉप देना है। तो अभी प्रॉपर्टी थोड़ा सस्ती मिल रही है, काफी सारे जगह पे खाली हुई है, वो हम ले सकते हैं। 30,000 रुपीज तब भी हायर नोट पे है। हमें अगर इसके आसपास प्रॉपर्टी मिल जाती है विच इज बेस्ट। some properties which is on prime location like heart of the city for any city, then we can pay more than that, but 30,000 is a roughly amount which we need to look for. इलेक्ट्रिसिटी जो है 13,000 रुपए करीब एवरेज आता है। एक एसी चलता है पूरे स्टोर में और मेजर 2 मशीनें हैं जो हैवी ड्यूटी होती हैं। इन तीनों को मिलाकर हमारा 13,000 रुपए आता है। जाड़े में और भी कम आता है और गर्मी में थोड़ा सा 17,000 रुपए के आसपास आता है। सैलरी जो हमने टारगेट करा था वो 30,000 रुपीज है एंड ईच स्टोर आर अंडर दीज अमाउंट। 30,000 कैसे होता है? we are not having any chef in our stores, so the bigger question is like how we deal it. So we believe in freshers. हम जहां भी जाते हैं, जैसे सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करा, हम जैसी साइनिंग होती है उसके इमीडिएट बाद वी आर डूइंग सम हायरिंग, और हायरिंग हम फ्रेशर्स का लेते हैं और फ्रेशर विल कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज 7,000 रुपीज फॉर द शिफ्ट। तो अगर हम 2 बंदे या 3 बंदे भी एक स्टोर में लेते हैं सो दैट कॉस्ट अराउंड 21,000 रुपीज, और हम 2 पार्ट टाइमर का कॉन्सेप्ट इसमें डालते हैं जहां पे वो 4 घंटे काम करेगा तो 8,000 रुपए, या अगर हमें 4,500 रुपए में मिलेगा तो 9,000 रुपए के 2 और बंदे मिल सकते हैं जो कि 30,000 रुपए का अमाउंट होता है। कुछ स्टोर पे फ्रेंचाइजी का जो ओनर है वो खुद रहता है तो वहाँ पे कई बार एक बंदा कम होता है, कई बार कई जगह पे वो बिल्कुल नहीं रहता है, वहाँ पे बंदा बढ़ सकता है। बट हमारा एक सैलरी का जो टारगेट है या जो हमें बेंचमार्क बनाना चाहिए वो 30,000 रुपीज है। एंड मेनी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टोर्स आर डूइंग ऑन द सेम पेज, लाइक वेदर इट्स 1,000 स्क्वायर फीट इन बहराइच दे आर ऑन 28,000 रुपीज सैलरी, वेदर इज इन उरई जहाँ पे 500 स्क्वायर फीट का स्टोर है वहाँ पे भी 28,000 रुपये सैलरी जा रहा है। तो दिस इज अ सैलरी कॉस्ट। देन अदर एक्सपेंसेस जो डेली के नीड होते हैं, जैसे हमने डीजल डाला है या कुछ हाउसकीपिंग का सामान आया है या कुछ कोरियर वोरियर कराया है, तो 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा डेली मतलब महीने का हमारा स्टोर का पेटी एक्सपेंस होता है। सो दीज एक्सपेंसेस विल कैलकुलेट एज ए 86,000 रुपीज। तो अगर हम 1,40,000 में से 86 हटा देंगे और हमारा रॉयल्टी जो वी आर चार्जिंग 5% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, सो वी आर चार्जिंग रॉयल्टी ऑन नेट सेल फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, so that is around 10,000 rupees per month, and after all the deduction of even royalty you can easily earn around 53 to 55,000 rupees per month, so which is roughly around 6.5 lakh rupees per year। और अगर हम आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें आपके कैपिटल पे, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, तो लगभग 12 से 14 महीने में यू कैन इजिली रिटर्न आउट योर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेनी ऑफ द स्टोर्स आर डूइंग 10,000 रुपीज पर डे सेल। अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें, अभी तो थोड़ा सा चूंकि चेंजेस हुए हैं सेल में, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो यू कैन इजिली अर्न अराउंड 90,000 रुपीज फ्रॉम द स्टोर। जो अप कंट्री स्टोर्स हैं जहाँ पे जैसे कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनका रेडियस सिर्फ 5 किलोमीटर है, जैसे गोरखपुर है, और अगर हम उधर चले जाएं मेरठ है, या सम ऑफ द सिटीज विच आर हैविंग ओनली 5-6 किलोमीटर रेडियस,
तो वहाँ पे I'm committing to have only one store in one city, and that store seriously going to do around 14,000 rupees sale from the stores. So they have bigger opportunity, they have bigger picture also. So this is complete sheet of return on investment. So we can discuss on your query also. Yeah, Ashok ji, next slide. Yeah, next slide. Yes. So these are our customers. I have just photographed some of them, and I got some photographs from the stores. So these are the pictures which. So what I wanted to explain here, like I'm trying to engage as many as customer, whether it's any of the store. In 2-3 points जो हम engagement में cover करते हैं. पहला, I am also linked with many of the events, running events, cycling event, and many of the events, fitness events. So I am trying to lead events with Mr. Sandwich brand name. तो अभी क्या है कि जैसे suppose we choose one store in Roorkee, so we try to have running event there, and exploit immediately all the t-shirts and everything with Mr. Sandwich name, so your brand get popular there. So that kind of engagement with the customer we are dealing with. अभी ये सारी चीजें जैसे हैं, अगर किसी कस्टमर का बर्थडे है, so we offer live guitar session with those customers, or many of the things, like you can also suggest me, and we can have, because we have many people linked across UP and even around the country also, so they can offer. अभी क्या है कि इस समय वो लोग स्टोर पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो we can have a live online हैप्पी बर्थडे सेशन टू द कस्टमर. वो सब अभी हमने करा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. सो वी आर ट्राइंग टू लिंक विद द कस्टमर. जैसे एज मच एज एंगेजमेंट वी हैव, उतना अच्छा रिटेंशन रहेगा कस्टमर का, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारा जो चेन है, ये सारा जो कंपटीशन है, ये हर चौथे मोड़ पे आपको ये मिलेगा. सो नाउ वी हैव दीज स्मॉल यूएसपी विच लीड योर स्टोर जो डिफरेंशिएट करती हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू शोकेस. Our customer are happy, then we are also happy. Yeah, Ashok ji, that's from my side. Any of the query I can have answer on that. Thank you Amit ji, thanks a lot. So dear participants, आज हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है मिस्टर सैंडविच. और मिस्टर सैंडविच जो ब्रांड है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने ब्रांड की पैन इंडिया फ्रेंचाइज दे रहा है. और इस ब्रांड का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो इसके फूड वेराइटीज और फूड प्रोडक्ट्स रेंज. सो मिस्टर प्लीज कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी क्वारी है तो उसके लिए आपको चैट बॉक्स पर जाना है, रेज हैंड पे क्लिक करना है और आप मिस्टर अमित जी से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन. So participants, now you can raise hand in chat box and can ask your question to Mr. Amit. Okay, Mr. Amit, we have first question. Mr. Arun from Jodhpur. वो जानना चाह रहे हैं कि is it vegetarian or we can add non-vegetarian products also? So good question. क्या इसके अंदर सिर्फ प्योर वेजिटेरियन है? अगर प्योर वेजिटेरियन है तो क्या इसके अंदर वो नॉन वेज भी ऐड कर सकते हैं क्या? या सो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये प्योर वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज नहीं ऐड कर सकते इसमें, हमारे मेन्यू में ऐड नहीं हो सकता है. अभी क्या है कि कई जगह पे स्टोर्स ऐसे बने हैं जहाँ पे दे हैव स्पेस विद द स्टोर ओनली. जैसे हमारा 400 स्क्वायर फीट का स्पेस था, उनके पास 100 स्क्वायर फीट और स्पेस है, और उन्हें लगता है कि हम इसके साथ वो चला सकते हैं, तो फिर वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बट मिस्टर सैंडविच इज नॉट ऑफरिंग एनी ऑफ नॉन वेज प्रोडक्ट्स. तो वो क्योंकि क्या है कि जो अभी जैसे जैसे आप आर फोकस इज टू कैटर T3 T4 सिटीज, एंड इवन थोड़ा सा जहाँ मतलब जिसको कहते हैं कि रूरल एरिया ऑल्सो, तो वहाँ पे क्या है कि फैमिलीज और जो लोग कैफे जाते हैं वहाँ पे दोनों चीजें मिक्स मिलती है. तो हमने शुरू से फोकस रखा था कि इट्स गोइंग टू बी अ प्योर वेज स्टोर and we offer as much as variety of vegetarian food. तो अभी तक और अभी आगे भी फिलहाल नॉनवेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, and we are not allowing also. But yes, if they have space, अगर जैसे हमारे पास 500 स्क्वायर फीट का स्पेस फाइनल होता है,
और हमें 300 स्क्वायर फीट लेके हम 200 स्क्वायर फीट उनके लिए डिजाइन भी कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो रन नॉन-वेज प्रोडक्ट्स अंडर देयर अम्ब्रेला, बट दे कैन, मतलब कस्टमर कैन सिट इन अ सिंगल प्रेमिसेस, तो वैसा हो सकता है। या Thank जी, you. Thanks a lot. या Mr. Amit, we have next question, Mr. Rajiv Nayak from Surat. वो जानना चाह रहे हैं कि how will you support in sales? हेलो, Yes sir, Mr. Rajiv Nayak का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि सेल्स में आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होता है। देखिए सेल्स का जो, अगर हम सेल्स देखिए दो तरीके से ड्राइव है, पहला है अपना कस्टमर रिटेंशन और दूसरा है ब्रांड पोजिशनिंग। तो कस्टमर रिटेंशन के लिए तो फ्रेंचाइजी पार्टनर इज होलसेल लाइबल, बट फॉर द ब्रांड पोजिशनिंग वी आर डूइंग। ब्रांड पोजिशनिंग कैसे, हमने अभी बताया कि वी आर डूइंग मेनी ऑफ द इवेंट्स थ्रू आउट द इंडिया, जहाँ पे इवेंट्स क्या है, आजकल फिटनेस को लेकर बहुत मोटिवेशन है मार्केट में, फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, तो हम अपनी ब्रांड पोजिशनिंग जगह जगह पे कर रहे हैं। सपोज सूरत का अगर हम बात करें, अभी हम सूरत में ट्राई करेंगे कि वहाँ पे कैसे ब्रांड पोजिशनिंग करें। सेल्स एट द स्टोर कैसे बढ़ेगा, वो तो फ्रेंचाइजी को फोकस करना पड़ेगा कि कस्टमर को कैसे रिटेन करें। देखिए होता क्या है, अभी फ्रेंचाइजी लेने के बाद हम सारा लड़कों पे अगर लाइबिलिटी डाल देंगे तो फिर रन नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज मेरी आदत है, मैं किसी भी स्टोर में जाता हूँ तो एज ए स्टोर मैनेजर काम करने लगता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने एसोसिएट को भी समझूं, साथ साथ कस्टमर को भी। तो मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए किसी को आपने पिज्जा दिया और पिज्जा अगर वो ठंडा है या कस्टमर ने कहा कि ये ठंडा है, तो आपके पास जितना अच्छा आंसर होगा उतना अच्छा आंसर एसोसिएट के पास नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑल द कैलकुलेशन की वेनिला आइसक्रीम कितनी सस्ती है, मैं इसको एक वेनिला आइसक्रीम खिला सकता हूँ क्या, या मैं इसको दूसरा पिज्जा खिला सकता हूँ क्या, या फिर मैं उनको समझा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होता है, एसोसिएट तुरंत एक्शन नहीं ले पाता, तो हमारा रिटेंशन टूट जाता है। तो हम, मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट जो इवनिंग टाइम है उस टाइम पे अगर हमारी अवेलेबिलिटी होगी तो मेनी ऑफ द कस्टमर को हम खुद से डील कर पाएंगे, और एटलीस्ट हमारे पास फील आएगा। अगर हमने 8-10 कस्टमर को डील करा तो हमारे पास एक्सपीरियंस फील आएगा। और ब्रांड पोजिशनिंग के लिए क्या है कि मैं पूरी तरीके से, हमारी टीम ट्राई करेगी कि हम उस सिटी में क्या और ऐसा इवेंट क्रिएट हो जाए। आपने मेरे को कहा कि यार यहाँ पे ये चल सकता है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? तो वी आर मोर ऑफ वेराइटीज विच सजेस्टेड बाय फ्रेंचाइजी, बट डिपेंड्स ऑन द वायबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर अवेलेबल होना चाहिए सारे तरफ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आपको मिल रहा हो बाकी लोगों को ना मिले, क्योंकि मेन्यू हमें यूनिफॉर्म रखना है। और वायबिलिटी क्या है उसकी, मतलब बिजनेस में रखने में उसको फायदा है भी कि नहीं है, पता चला हम रख लें और वेस्टेज हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो your question's answer is like our complete focus is to brand positioning and enhance your sale by brand positioning, by drag customer through brand awareness। और दूसरा होता है कि आपको सजेस्टिव सेलिंग हम दे सकते हैं मेन्यू ऐड करके, बाकी आपको कस्टमर तो आप सर ड्रैग करेंगे वहां पे स्टोर पे। क्या अशोक जी? Thank you, Mr. Amit. Yeah. Okay, next question, Mr. Amjad. Mr. Amjad, please अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि इसमें मेन्यू क्या क्या रहे? मेन्यू मैंने आपको बताया अभी। सबसे पहला जो जैसे नेम है मिस्टर सैंडविच, तो सैंडविच हमारा ड्राइव है। हम 16 वेरिएंट सैंडविचेस का ब्राउन ब्रेड का रखते हैं। उसके बाद हमारे पास बाकी सभी कुछ है जो कैफे में होता है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, मैगी है, रैप्स हैं, फ्राइज होते हैं सारे, जो आजकल फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब चलता है, कॉफी सारी होंगी, बर्गर और सैंडविच, और सबमरीन एक सैंडविच होता है। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो ब्राउन और मल्टीग्रेन में बनते हैं, तो ये 3 थोड़े से डिफरेंट होंगे मार्केट में। बाकी गार्लिक ब्रेड्स भी होती है। उसके बाद इफ यू गो टू विंटर में हम सूप भी ऐड कर देते हैं। सो इट्स ए ह्यूज, अराउंड 110 आर्टिकल्स हैं हमारे मेन्यू में। वी कैन शेयर मेन्यू कार्ड पर्सनली।
ओके सर, इसको टायर 3 सिटी में शुरू किया जा सकता है? सर टायर 3 के लिए तो मैंने अभी बताया बेस्ट ऑप्शन है, नो वन कैन कॉम्पीट, आई कैन बेट फॉर एटलीस्ट 2-3 years, नो वन कैन बीट। सेकेंड क्या होता है, आपका ऑपरेशन कॉस्ट इतना लो होगा कि आपको कभी चैलेंज ही नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रन द स्टोर फॉर 1 year and the store which I run is still running, so I can bet on you, your operation cost is very low। आपका देखिए टियर 3 में क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी प्राइम मिलेगा, वो 30,000 रुपए में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। आपकी अपनी गुडविल वहां पे आपके कस्टमर को खींचेगी, क्योंकि आपकी भी अपनी कुछ गुडविल होगी वहां पे, अपने कॉन्टेक्ट होंगे, तो क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने लगता है। तीसरा क्या है, ब्रांड पहुंचता है कोई, तो लोगों को ये रहता है कि नहीं इस जगह पे अच्छा मिलेगा बिकॉज दिस इज ब्रांड, क्योंकि हम ब्रांड पोजिशनिंग करेंगे वहां पे, कोई भी नई सिटी में जाएंगे तो हम अपनी ब्रांड पोजिशनिंग करेंगे 1 महीने तक, तो लोगों को ये रहेगा कि नहीं ब्रांड आया तो ये चीजें अच्छी देगा। बहुत सारी चीजें, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जितने भी स्टोर आपकी सिटी में होंगे, जो भी सिटी है, आप स्टोर में जाएंगे वो म्यूजिक तक नहीं चलता है, बट वी आर फोकसिंग कि म्यूजिक भी ऑन होना चाहिए। दीज आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो कस्टमर को फील आता है पर वो बताता नहीं है। अच्छा तो सर, आई कैन बेट कि आप अगर टियर 3 सिटी में खुलेगा तो आप 12-13 हजार रुपए सेल इजीली क्रैक कर सकते हैं, और 12-13 हजार सेल का मतलब होता है यू आर अर्निंग अराउंड 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ। तो अच्छा सर, इसमें एक वहाँ- चीज ये बता दीजिए सर कि ये फ्रेंचाइजी फी है, हाँ इसमें इसमें आप देंगे क्या, मतलब इसमें सर, क्या पूरा सामान स्टोर रहेगा, क्या इक्विपमेंट रहेगा इसमें? मैं बताता हूँ। जो हमारा, जैसे आपने उसमें प्रॉपर्टी फाइनल हुई सपोज 500 स्क्वायर फीट की, और मैंने आपको एक बाइफर्केशन करके दिया कि ये इसमें 8 लाख रुपीज या 9 लाख रुपीज लगने हैं, तो हम उस पैसे में से सिर्फ 30% लेकर आपको जो मेजर मशीनरीज होती हैं वो सब दे देते हैं, उसी में हमारी फ्रेंचाइजी फी वगैरह सब आ जाती है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस हम आप ही से खर्च कराते हैं, तो हम पैसे ले नहीं रहे हैं आपसे, हम सारे एक्सपेंसेस आपसे ही खर्च कराएंगे, मतलब जो आपको बजट देंगे वो बजट भी हम आप ही से खर्च कराते हैं, तो पैसा आपके पास ही है, आप ही खर्च कर। जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक बजट दिया कि इसमें 8 लाख रुपए लगने हैं, और आपने पूछा 8 लाख किस किस चीज में लगेंगे, तो मैंने बताया कि ये एसी लगेगा, फ्रिज लगेगा, और एसी का कॉस्ट मान लीजिए मैंने 30,000 दिया, आपने बोला नहीं सर मेरे को तो 25 में मिलता है, मैं कहूँगा आप ले लो। आप समझ रहे हैं, तो मैं आपसे कॉस्टिंग जो बता रहा हूँ वो सब आप ही खर्च कर रहे हो, मैं सिर्फ आपसे 30% ले रहा हूँ, जिसमें 30% जो कि लगभग 2.5-3 लाख रुपए होगा, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1 महीने 1.5 महीने हमारी टीम खड़े होकर आपकी स्टोर पूरा बना के देगी आपको। दूसरा, आपको ग्रिलर, पिज्जा मशीन और फ्रायर, ये 3 आर्टिकल उसमें ऐड करके देगी। और तीसरा क्या होता है कि पूरी हायरिंग वायरिंग सारा करके वहाँ पे स्टार्ट करके 10 दिन और आपके साथ रहेकर, जब तक, और बल्कि एक आदमी वहाँ पे ऐसा रहेगा जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, बट ऑन पेमेंट बेसिस तो वो रहेगा। तो ये सारी चीजें हम फ्रेंचाइजी फी के अगेंस्ट में लेते हैं। अच्छा, मतलब जो सेफ होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी हाँ, मैंने भी बताया ना कि शेफ का फॉर द देखिए क्या लिमिटेड होता है, टाइम? हाँ जी। हाँ, जो भी बंदा हायर होगा वो वहाँ पे हायर होगा, टीम आपकी वहीं पे रहेगी, हमारा जी। बंदा भी रहेगा, बट हम उसको ट्रेन करेंगे जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी कम रहे। अच्छा जी। जी हम्म। अच्छा सर, मतलब जगह अगर कम मिलता है, जैसे 300 स्क्वायर फीट मिलता है, तो वो उसमें स्टार्ट हो सकता है? किस सिटी के लिए पूछ रहे हैं सर? तो टाइप 3 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब कौन सी सिटी है? सिटी तो सर ये दरभंगा है। अच्छा बिहार स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। सर देखिए 200 में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट हो जाएगा, पर मेरा सजेशन ये है कि टियर 3 जैसे दरभंगा आपने बताया, मैं कोशिश करूंगा कि दरभंगा में दूसरा स्टोर ना खुले, तो मेरा ये मानना है कि जो भी स्टोर खुले फ्लैगशिप रहे। तो और मेरा मानना है कि 200 में आप कुछ कैटर नहीं कर पाओगे, आप ना तो किटी करा पाओगे, ना किसी बच्चे का बर्थडे करा पाओगे, ना ही आप कोई उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा पाओगे, तो मेरा मानना है कि रेदर गो फॉर 200 स्क्वायर फीट। कोई चैलेंज नहीं है, मुझे क्या है, मेरा प्रेजेंस आ जाएगा वहां पे, आपसे बोलूंगा हाँ है, और हम, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ पे 200 स्क्वायर फीट में आप खर्च करोगे, जस्ट गो फॉर 500 स्क्वायर फीट, 10,000 रुपए का रेंटल बढ़ेगा आपका बस, लेकिन 500 स्क्वायर फीट में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बन जाएगी कि वहां पे सब कुछ होगा। जी जी ठीक है सर। थैंक यू मिस्टर अमजद, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर संतोष अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। या संतोष, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। How you do the brand positioning and the marketing? आपकी आवाज थोड़ी कम। हाँ How you do the brand positioning
संतोष जी, sorry, we are not audible. How you do the brand positioning and the marketing? Santosh ji, I have already replied for that question. I again repeat that thing, like for the brand positioning for the 1 month when we are entering, we are trying to capture all online social media things first. Second, we trying to have one influential, celebrity there who can have our opening ceremony. उससे भी बड़ा ब्रांड पोजीशन होता है कि अच्छा इन्होंने खोला था. दूसरा है फ्लायर एक्टिविटी तो हमारी होती है जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ. 4000 फ्लायर्स हम उसमें ऐड करके देते हैं. लेकिन ये जो मेन दो चीजें हैं इनसे ब्रांड पोजीशनिंग आपकी शुरुआत में हो जाएगी. आपने होर्डिंग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने मीडिया में चला गया, आपका कवरेज मिल गया आपको, तो फिर आपको ब्रांड पोजीशनिंग तो वैसी हो जाएगी कि अच्छा मिस्टर सैंडविच ओपन हो गया वहां पे. सो दीज टू थिंग्स विच वी डू इनिशियली एंड लेटर ऑन वी फाइंड आउट some kind of events or some kind of activity which we can have at that area with very with our budget. मतलब हम अपने हिसाब से जो प्लान करते हैं वो हम वहां पे करके देंगे. तो उस तरीके से ब्रांड पोजीशनिंग करते हैं. सो और ब्रांड पोजीशनिंग क्या है कि सिटी वाइज नहीं होती. ब्रांड पोजीशनिंग जैसे हमारा प्लान है कि हम इंडिया में स्टोर खोलने, तो वी आर ट्राइंग टू हैव ब्रांड पोजीशनिंग विद अ पैन इंडिया लेवल. सपोज वी कैन ऑल्सो, जैसे अभी इस समय मेरी 2-3 जगह पे डिस्कशन चल रहा है, विल हैव रेडियो एड ऑल्सो. सो इन लाइक लखनऊ में भी प्लान है, उसके बाद वी हैव अ प्लान इन कानपुर. सो वी कैन ऑल्सो प्लान इन दैट सिटी ऑल्सो. सो दैट काइंड ऑफ ब्रांडिंग वी कैन डू फॉर ब्रांड पोजीशनिंग. या संतोष जी, संतोष जी, वी होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया शायद, मुझे लग रहा है. So, dear participants, we have only 10 minutes left. हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है. आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर अमित जी से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मुबारिक रावल. मिस्टर रावल प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. मिस्टर रावल, या मिस्टर रावल, मिस्टर रावल, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सर, मिस्टर रावल ने अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है. वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस फ्रेंचाइजी एंड कैन यू ऑफर दिस फ्रेंचाइज इन यूपी एट शामली. कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन. सर, मिस्टर रावल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस फ्रेंचाइज. इस फ्रेंचाइज को लेने के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगा? Okay. I get that point. So for I have already explained that, but I can for Shamli, like they have to find out the property first. अब अगर ऐसे बता सकते हैं कि अगर वो 400-500 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी उन्होंने फाइनलाइज करा है तो उसमें लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा. और दूसरा मतलब ये एक लमसम अमाउंट कह सकते हैं, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी. मतलब थोड़ा वेरी करता है कि साइज क्या है, और 2 साइड प्रॉपर्टी है कि सिंगल साइड है, और वो पहले से अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी है तो उसमें थोड़ा खर्चा और कम हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स विच ट्विस्ट योर कॉस्ट. बट सेकेंड थिंग है कि शामली में बिल्कुल वी आर रेडी फॉर एनी ऑफ द स्मॉल सिटी, बिकॉज आई नो स्मॉल सिटी हैव मैक्सिमम पोटेंशियल राइट नाउ. So Shamli is a good city. I know it's near Saharanpur. We can go. Surely we can, move to. Thank you, Mr. Amit. We have next question, Mr. Vivek from Indore. वो जानना चाह रहे हैं कि सर any FOCO model available.
मिस्टर सैंडविच की तरफ से कोई फोको मॉडल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है सर? नहीं, अभी फोको मॉडल कोई नहीं है। अभी हमारा नेक्स्ट ईयर तक 4 कोको मॉडल का प्लान जरूर है, जिसमें से एक हमारे पास है। 3 और हमारे कोको मॉडल्स के प्लान हैं, बट फोको मॉडल का अभी कोई प्लान नहीं है। और ओनली फ्रेंचाइजी मोड और वी हैव अ कोको मॉडल। सो फोको मॉडल का कोई अभी प्लान नहीं है। थैंक यू सर। So dear participants, we have only 5 minutes left. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पर जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर अमित जी से बात कर सकते हैं, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। और आप इस वेबिनार के बाद में भी मिस्टर अमित से बात कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर। इट्स a 9919122224. I repeat again, it's a 9919122224. प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्टेक्ट नंबर। और आप इस वेबिनार के बाद में भी मिस्टर अमित से बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वारी अगर रह गई है, कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसके बाद में भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सुदीप फ्रॉम कोलकाता। वो जानना चाह रहे हैं एनी एमजी अपॉर्चुनिटी, कोई मिनिमम गारंटी अपॉर्चुनिटी है अपने इसके अंदर? सर मिनिमम गारंटी अपॉर्चुनिटी, very clearly saying like there is no as such business who can commit, because it's completely drive by you only. So you are the owner of your property, and I'm sure, like I can say, our first franchisee was opened 2 years back in Rajajipuram, Lucknow, and it's still running. After that, whosoever opened the franchisee store is still running, so no one is shutting down the business. So I can say these are the example which you can copy that. So this is only the way which I can assure you like this is going to run. I'll help you to find out the right property. I'll help you to figure out right rent. I also help you to figure out who is going to run that thing, like staff or training and everything. And even if you, I can say, अगर हमने उस समय प्रॉपर्टी पे खड़े होकर कैलकुलेशन लगाया कि इसका मिनिमम सेल तो इतना आना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि कहीं पे भी इट्स म्यूचुअल डिस्कशन, अगर आपको लग रहा है कि हम उससे भी नीचे ब्लीड कर रहे हैं किसी वर्स्ट कंडीशन में विच इज नॉट सपोज टू बी, देन आई कैन से लाइक आई डोंट टेक रॉयल्टी। मतलब दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विच वी ऑल हैव, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल वर्ड एंड वेरी स्मॉल यूनिट। हम 10-15-20 लोग हैं, हम मान लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं रन कर रहा, तो आई कैन से कि ठीक है यार, यू जस्ट डोंट पे दैट रॉयल्टी अमाउंट इफ यू आर नॉट running your even that bare minimum requirement. But I can guarantee like if you love that business, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खड़े रह के मुझे अच्छा लगता है, it's not going to shut down. So because I have seen people are running the business in very different way. आप लड़के हायर कर देते हैं, हम घर चले जाते हैं, हम शाम में सिर्फ कैश कलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और हम सोचते हैं स्टोर चले। वो पॉसिबल नहीं है सर, किसी बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। अभी क्या है कि इन इस तरीके के बिजनेस में you need to own that business, at least spend 2-3 hours with your associate, culture drive करने के लिए चाहिए होता है हमें। उसके अलावा 2-3 घंटे हम कस्टमर को समझने में थोड़ा सा टाइम अगर देंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फूड। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फ्रेंचाइजी पार्टनर को 1 साल तक यही नहीं पता चलता कि हमारा मेन्यू क्या था। तो अगर इस तरीके का अगर हम वो रखेंगे डिसइंटरेस्ट, तो फिर आप मतलब वो तो फिर लक है कि अगर वो चल रहा है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बचेगा चलने लायक। तो मेरा मानना है कि प्लीज ओन दैट स्टोर, कभी भी बंद नहीं होगा।